Good morning to all of you. In my last video, I have discussed SI system of units and MKS system of unit, CGS system of unit and FPS system of unit. Now in MKS, how many fundamental quantities are there? Fundamental quantities, that is 3: mass, length and time. In CGS, same 3 fundamental quantities. In FPS, same 3 fundamental quantities. Now in mechanics, we are using 3 systems of units: MKS, CGS and FPS. Now fundamental quantities are mass, length and time, and their fundamental units are kg in MKS, for length meter in MKS, for time second in MKS. Now in CGS, that is gram, centimeter and that is second. Now in FPS, foot, pound and that is second. Now this is for MKS, this is for CGS and this is for FPS. It means हमें MKS, CGS और FPS में अपना एक्सपेरिमेंट इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज तक ही लिमिटेड रखना है. इसका मीनिंग MKS में जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई और एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं आएगी. इसी टाइप से CGS में जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके अंदर ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड के अलावा कोई और यूनिट अपीयर नहीं होगी. इसी टाइप से FPS में इन तीनों यूनिट्स के अलावा कोई और यूनिट अपीयर नहीं होगी. इट मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होगी वो बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. सो मैटर ऑफ डिस्कशन इज फंडामेंटल यूनिट्स. Fundamental units का meaning, the units of fundamental quantities are known as fundamental units. तो सिंपल वे से लिखेंगे the units of fundamental quantities are known as fundamental units. Now example: kg, meter, second, that is in mechanics. Now in SI system we have ampere, Kelvin, candela, mole. These are fundamental units of fundamental quantities in SI system. It means SI system में हमारे पास 7 fundamental quantities हैं, और उन 7 fundamental quantities की fundamental units हमने लिखी हैं: kg, meter, second, ampere, Kelvin, candela for luminous intensity, mole for amount of substance. So these are 7 fundamental units of fundamental quantities in SI system. इसी टाइप से
नेक्स्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो यूनिट्स आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से, जो यूनिट्स आपकी फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव होंगी उनका नेम क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट्स। सो दोज यूनिट्स whose explanation based on fundamental units are known as derived units। इसका मीनिंग वो यूनिट्स जिनके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स अपीयर होंगी, दोज यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम सिंपल वे से डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दोज units whose appearance contains fundamental units are called derived यूनिट्स। तो जिन यूनिट्स को लिखते टाइम हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करेंगे, दोज यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जांपल क्या लोगे? वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव होंगी, जिनकी अपीयरेंस में फंडामेंटल यूनिट्स अपीयर होंगी, तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल, फोर्स इक्वल टू ma। अब फोर्स इक्वल टू ma के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स आपकी यूज हुई हैं? फॉर मास kg, फॉर एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है आपकी, दैट इज kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इज नोन एज derived unit। So this is known as derived unit। In the same way, momentum equal to mass into velocity। Now for mass it is kg, for velocity meter upon second। Now again it is known as derived unit। तो derived unit का मीनिंग है those units in which we are using fundamental units are known as derived units। Now let us find out derived unit of work done। इसी टाइप से वर्क डन की और एनर्जी की आपको डिराइव यूनिट निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वर्क डन की? तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला सबको मालूम होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला 9th क्लास में यूज हुआ था। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की आपकी डिराइव यूनिट क्या है? kg meter upon second square, and for distance that is meter। Now it is kg meter square upon second square, that is derived unit of work done। तो ये वर्क डन की derived unit है। So these are known as derived units in which we are using fundamental units। So derived units का meaning the units in which we have combination of fundamental units are known as derived units। तो हम सिंपल वे से इसको डिफाइन कर सकते हैं derived units को। derived units का meaning the combination of fundamental units is known as
कॉम्बिनेशन और हम बना सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स का मीनिंग जिसके अंदर हमें फंडामेंटल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन मिले, दैट यूनिट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ we have next topic, that is dimensions of physical quantity, that is dimensions of physical quantity. Let us write down dimensions of physical quantity. Dimensions of physical quantity. What is the meaning of dimensions? If you have any object, then what is the dimensions of that object? Meaning of dimensions: length, breadth and height. It means इस object की length क्या है, breadth क्या है, height क्या है. These three are dimensions of that object. इसी टाइप से फिजिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशंस होते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस मास, लेंथ और टाइम होते हैं। इसका मीनिंग फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई भी मैकेनिक्स में है, इन मैकेनिक्स if there is any physical quantity, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको? मास, लेंथ और टाइम। इट मींस मैकेनिक्स के अंदर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या क्या होंगे? दैट इज मास, लेंथ और टाइम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मैकेनिक्स में टेस्ट करोगे तो वो किससे मिलके बनी हुई है? मास, लेंथ और टाइम। इट मींस दीज आर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटीज मैकेनिक्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैकेनिक्स। तो बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज की मैकेनिक्स को आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई नया घर बनाते हो तो नए घर के लिए आप बेसमेंट प्रॉपर बनाओगे। सो बेसमेंट इज द पावरफुल टूल टू मेक प्रॉपर हाउस। तो कोई प्रॉपर हाउस अगर आपको बनाना है तो उसके लिए बेसमेंट आपका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। उसी टाइप से मैकेनिक्स को अगर आपको पावरफुल बनाना है तो मैकेनिक्स का बेसमेंट स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और मैकेनिक्स का बेसमेंट क्या है? मास, लेंथ और टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम मैकेनिक्स के बेसिक्स हैं और ये बेसिक्स आपके मैकेनिक्स के अंदर हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मिलेंगे। तो जो बेसिक्स की पावर होगी उनको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस मास, लेंथ और टाइम कितनी बार अपीयर हुआ है फिजिकल क्वांटिटी में, देन दैट टाइम्स of mass, that times of length, that times of time. It means mass कितने times appear हुआ है, length कितने times appear हुई है, time कितनी बार appear हुआ है. So that number of times mass will appear, number of times length will appear, number of times time will appear. That number of times will decide dimensions of physical quantity in mechanics. तो मैकेनिक्स के अंदर डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैकेनिक्स के अंदर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? मास, लेंथ और टाइम। और मास, लेंथ और टाइम जितनी बार अपीयर हुए हैं वो नंबर क्या होगा? दैट नंबर इज नोन एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी टाइप से अगर मैं फोर्स को लिखता हूं, फोर्स इक्वल टू ma। अब यहां पर मास की पावर क्या है? 1 और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। इट मींस मास पावर 1, लेंथ पावर 1 अपॉन टाइम पावर
2। नाउ फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। चेक करो आप बेटा, ये फंडामेंटल यूनिट डिराइव यूनिट है। अब यहां चेक करो कॉम्बिनेशन है किसका, फंडामेंटल यूनिट्स का। तो यहां मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स आपकी अपीयर हुई हैं, और जहां पर किसी यूनिट के अंदर, किसी यूनिट की अपीयरेंस के अंदर आपको मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स मिलेंगी, तो दैट यूनिट इज नोन एज डिराइव यूनिट। तो ये आपकी डिराइव यूनिट है। और इसके अंदर देखो केजी कितनी बार आया, 1 टाइम, मीटर कितनी बार आया, 1 टाइम, सेकंड कितनी बार आया, 2 टाइम। इसका मीनिंग अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, केजी पावर 1, मीटर पावर 1, सेकंड पावर -2। तो इसी टाइप से आप इसको यहां लिखोगे, मास पावर 1, लेंथ पावर 1 एंड टाइम पावर 2। नाउ टेल मी dimensions of mass, that is 1, dimensions of length, that is 1, dimensions of time, that is -2. So these are dimensions of mass, length and time in derived quantity, that is force. So derived क्वांटिटी दैट इज फोर्स मींस फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स हमने ली है। अब फोर्स के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी अपीयर हुई है, मास, लेंथ और टाइम। अब इनके डायमेंशंस क्या क्या हैं, दैट इज 1, 1, -2। सो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी is known as dimensions of that physical quantity. It means अगर हमें dimensions को define करना है तो simple way में क्या बोलेंगे, the powers of, तो इसको नोट करना पड़ेगा आपको, नोट कर लो, the powers of fundamental quantities in any physical quantity are known as dimensions of that physical क्वांटिटी। तो सिंपल वे में आपने क्या लिखा, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स होंगी, उन पावर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज डायमेंशंस ऑफ दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डायमेंशंस होते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको फंडामेंटल फॉर्म मालूम है तो आप उस फंडामेंटल फॉर्म के अंदर मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को नोट करके उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। सो डायमेंशंस की हेल्प से हमें मालूम चलेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में मास ने अपना कितना रोल प्ले किया है, लेंथ ने अपना कितना रोल प्ले किया है, टाइम ने कितना रोल प्ले किया है। अब यहाँ चेक करो कि मास का रोल क्या है, 1 टाइम मास अपीयर हुआ है, लेंथ 1 टाइम अपीयर हुआ है, इसका मीनिंग मास और लेंथ का रोल इक्वल है, इसका मीनिंग दोनों की पावर 1, 1 है। लेकिन टाइम का रोल मास और लेंथ से डिफरेंट है, क्यों, टाइम की पावर क्या है, -2 है, इसका मीनिंग टाइम का रोल अलग है, किसके कंपैरिजन में, मास और लेंथ के कंपैरिजन में। तो आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हो। जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, P = mv। नाउ मोमेंटम इज इक्वल टू मास m। नाउ फॉर वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम। सो मोमेंटम के अंदर मास की पावर 1 आएगी, लेंथ की पावर 1 आएगी और टाइम की पावर -1 आएगी। इसका मीनिंग मोमेंटम के अंदर मास
तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 1, 1, -1. इट मींस ये वन डायमेंशन किसका है, मास का, ये लेंथ और ये टाइम. इट मींस हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं कि मास कितनी बार अपीयर हुआ है, लेंथ कितनी बार अपीयर हुई है, टाइम कितनी बार अपीयर हुआ है. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का आप लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालते हो, उसी टाइप से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने हैं. और डायमेंशंस का मीनिंग मास कितनी बार अपीयर हुआ है, लेंथ कितनी बार अपीयर हुई है, टाइम कितनी बार अपीयर हुआ है. सो दोस पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी. सो द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज in any physical quantity are known as dimensions of that physical quantity. Now next we have to discuss dimensional formula. Next we have to discuss dimensional formula. Next we have to discuss dimensional formula. Dimensional formula or fundamental formula. In my last video, I discussed fundamental formula and physical formula. Dimensional formula और fundamental formula जिस physical relation के अंदर सिर्फ fundamental quantities appear होंगी, that physical relation is known as dimensional formula or fundamental formula of that physical quantity. मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन के अंदर सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज अपीयर होंगी, देन दैट फॉर्मुलेशन, दैट इक्वेशन इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला और फंडामेंटल फॉर्मूला. नाउ टेल मी व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम. मास, लेंथ और टाइम आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स के अंदर, और मास, लेंथ और टाइम से आप मैकेनिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हो. आप मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो. बिना मास, लेंथ और टाइम के आप किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. इसका मीनिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको अगर मोशन डिस्कस करना है तो मास, लेंथ और टाइम के बिना आप नहीं चल सकते. तो मास, लेंथ और टाइम आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं. किसके लिए? मैकेनिक्स के लिए. तो मैकेनिक्स को अगर आपको फ्रेम करना है तो मास, लेंथ और टाइम के बिना आप नहीं चल सकते. तो उसी टाइप से हम अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, उसका फॉर्मूला आपको लिखना है, तो अगर उसके फॉर्मूले के अंदर खाली फंडामेंटल क्वांटिटी अपीयर होंगी, देन दैट फॉर्मूला इज नोन एज फंडामेंटल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला. चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी. व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी written in form of fundamental quantities, then that relation or equation
is known as fundamental formula or dimensional formula। इसका मीनिंग जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखोगे, then that equation is known as fundamental formula or dimensional formula। Now take example। For example, force is equal to mass, length and time power -2। Now that is physical quantity। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल है, ड्राइव है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी है? टेल मी, फंडामेंटल है, ड्राइव है? इसके अंदर किस किस का कॉम्बिनेशन आया हुआ है? मास, लेंथ और टाइम का। तो जहां पर फंडामेंटल यूनिट्स आपकी कॉम्बिनेशन में होंगी, वहां पर फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी हो जाएगी? दैट इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब ये अगर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके अंदर मास, लेंथ और टाइम अपीयर हुआ है। इसका मीनिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि फोर्स के फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई और क्वांटिटी नहीं है। इसका मीनिंग दैट कॉम्बिनेशन, दैट फॉर्मुलेशन इज नोन एज फंडामेंटल फॉर्मूला। दैट इज फंडामेंटल formula or dimensional formula। Now we can write down dimensional formula of force, that is mLT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या आएगा? m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो अब इसी टाइप से अगर मुझे लिखना हो फिजिकल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फिजिकल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो मैं कैसे लिखूंगा? फिजिकल फॉर्मूला ऑफ force। Now my topic of discussion is physical formula of force। फोर्स का फिजिकल फॉर्मूला, फोर्स का सिंबल F है और इसका फिजिकल फॉर्मूला बनेगा Ma। आप चेक करो, that is physical formula and that is dimensional formula। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ लेंथ है, टाइम है, यहाँ लेंथ और टाइम नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो फिजिकल फॉर्मूला के अंदर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी भी मिलेगी और आपको डिराइव क्वांटिटी भी मिलेगी। इसका मीनिंग फिजिकल फॉर्मूला के अंदर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी भी मिल सकती है और उसके साथ में डिराइव क्वांटिटी भी मिल सकती है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला में, फंडामेंटल फॉर्मूला में आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही मिलेंगी, आपको डिराइव क्वांटिटी नहीं मिलेगी। सो फिजिकल फॉर्मूला में आपको मिक्सिंग मिलेगी। किसकी मिक्सिंग मिलेगी? डिराइव क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिजिकल फॉर्मूला मींस कॉम्बिनेशन ऑफ derived quantity and fundamental quantity, and fundamental formula means combination of only fundamental quantities। तो दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चल गया कि फिजिकल फार्मूला क्या है और फंडामेंटल फार्मूला क्या है। अब इसी टाइप से मुझे बताओ फंडामेंटल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। फंडामेंटल फार्मूला